Neither of the above form of the Lord are just described unto you from the material angle of vision. He is accepted by the pure devotee of Lord who know him well. Purport. The impersonalists think of absolute personality of Godhead in two ways, as above mentioned. On one hand, they worship the Lord in his Viswarup or all-pervading universal form. And on the other, they think of Lord's unmanifested, indescribable, subtle form. The theories of pantheism and monism are respectively applicable to these two conceptions of the Supreme as gross and subtle. But both of them are rejected by the learned pure devotees of the Lord because they are aware of factual position. This is very clearly mentioned in 11th chapter of Bhagavad Gita, which records Arjuna's experience of Vishwarup of the Supreme Lord Sri Krishna. Arjuna, as a pure devotee of the Lord, never previously saw the contemplated universal form of the Lord, Vishwarup. But when he did see it, his curiosity was satisfied. But because of his attachment as a pure devotee, he was not happy to see that form. Indeed, he was afraid to see such a gigantic form of the Lord. He therefore prayed to the Lord to assume his 400 Narayana form or his Krishna form, which alone could please Arjuna. Undoubtedly, the Lord has the supreme potency to exhibit himself in multifarious form. But the pure devotee of the Lord are interested in his form as eternally exhibited in the abode of the Lord, known as Tripad Vibhuti or Kingdom of the God. The Lord in the Tripad Vibhuti abode exhibit himself in two forms, either in the 400 or with the two hands. The Vishwarup exhibited in the metal manifestation has unlimited hands and unlimited dimension with everything unlimited. The pure devotee of the Lord worship him in his Vaikuntha form as Narayana or Krishna, sometimes the same Vaikuntha form of the Lord as in the metal world, also by his grace as Sri Ram, Sri Krishna, Sri Narsingh Dev, etc. Thus the pure devotee also worship them. Usually the features shown in the metal world have no extents in the Vaikuntha planet, and thus they are not accepted by the pure devotees. What the pure devotees worship from the very beginning are the eternal form of the Lord exhibited in the Vaikuntha planet. The non-devotee impersonalists imagine material form of the Lord and unlimitedly they merge into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, where the pure devotee of the Lord are worshipper of the Lord, both in the beginning and also in the perfect stage of salvation eternally. The worship of pure devotee never stops, whereas the worship of the impersonalist stops after his attaining of salvation. When he merges into impersonal form of the Lord known as Brahmajyoti, therefore the pure devotee of the Lord are described here as Vipaschita, or the learned who are in the knowledge of Lord perfectly. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Tadati Shapadantikam Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhube Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashad Deshatarine. हरे कृष्ण. सॉरी काफ़ी लेट आया क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा लंबा थी. इधर इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कैसे शुद्ध भक्त लोग भगवान को समझते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं. अर्जुन भगवान का विराट रूप को देखना चाह रहे थे. जैसे विराट रूप को देखें अर्जुन बहुत डर गए हैं. हु आर यू, आपका मिशन क्या है? पहले वो खुद ही बोलेंगे आप दिखाओ, और बाद में बोल रहे हैं आप कौन है, नहीं आपका क्या लक्ष्य है, नहीं किस लिए आए हो. देन भगवान बोलते हैं कि मैं काल उसमें मैं काल हूँ. सो देन इतना डरा हुआ रूप को देख के अर्जुन बोलते नहीं मेरे को आप क्या पर्सनल फॉर्म, मतलब मैं पहले कैसे थे वैसे ही दिखाओ. देन भगवान चतुर्भुज में आते हैं. हर के बाद नहीं मेरे को 200 फॉर्म चाहिए. देन श्याम सुंदर रूप में आता. उसमें श्लोक में
बताते हैं कि ये सुदुर्लभ है, हम ये दर्शन कर रहे हैं, ये सुदुर्लभ है। इट इज़ नॉट, इट कैनॉट बी सीन बाई डेमी गॉड, कोई भी सेजेस ये नहीं देख सकते, ये दुर्लभ दर्शन है, दुर्लभ भी नहीं है, क्या बोलते हैं, सुदुर्लभ। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से उस सुदुर्लभ का रूप है वो हम डेली देखते हैं। हरी हरी, श्री श्री राधा गोविंद की। सो इसलिए मैं आज जैसे लास्ट में प्रभुपाद बोलते विपासित है, विपासित मतलब हैं ये शुद्ध भक्त लोग हैं, दे आर वेरी हाईली लर्नड। वो भगवान कैसे हैं वो उसी के रूप में ही दर्शन करते हैं। दे आर प्योर डिवोटीज। एंड प्योर डिवोटीज सबसे टॉप मोस्ट प्योर डिवोटी कौन है, कौन है, ब्रजवासी। सो हम आज चर्चा करेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का लीला में, और कैसे ब्रजवासी कृष्ण को देखते हैं, कैसे कृष्ण का ऐश्वर्य को कैसे देखते हैं, और कृष्ण का माधुर्य को कैसे देखते हैं, और क्या रिलेशन है, और हमको कैसे उस लेवल तक पहुंचना है, ऐश्वर्य से माधुर्य तक कैसे पहुंचना है। सो उसके बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। सो भक्ति में अनेक स्कूल हैं नहीं, और हरे कृष्णा, भक्ति में अनेक स्कूल हैं और सब मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, और विष्णु परम भगवान है, नारायण परम भगवान है। सो ये सब जानते हैं नहीं, और इसका हम कितने भी ये प्रोसेस हैं फॉलो करते हैं, मतलब ये भौतिक जगह में माया में फंसे हुए हैं, उससे कैसे हम छुटकारा हो और इंटीमेट संबंध कैसे भगवान से बनाए जाएं। दैट इज़ द सम टोटल ऑफ पूरा भक्ति स्कूल का मेन फाउंडेशन यही है नहीं। भगवान कृष्ण है वो परम भगवान है, और विष्णु और नारायण, और प्रोसेस क्या है, इस भौतिक जगह से छुटकारा, सैल्वेशन पाके लिबरेट होके और भगवान से इंटीमेट संबंध को कैसे स्थापना करना। दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल भक्ति। बट भक्ति स्कूल, बट हमारा गौड़ीय संप्रदाय में स्पेशल क्या है, हम श्रीमद् भागवतम का दृष्टि से देखते हैं, और श्रीमद् भागवतम के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में भागवतम क्या बोलते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतांशं च कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो इसको बोलता परिभाषा सूत्र। इस श्लोक से ही हम पूरी भागवतम का देखना चाहिए नहीं। सन गौड़ीय संप्रदाय दे से दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और संप्रदाय में हो सकते हैं परमात्मा है, परमात्मा ही कृष्ण है, इस तरफ का बोल सकते हैं नहीं, बोलते हैं। और भगवान राम, भगवान नरसिंह देव, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, सो अनेक संप्रदाय में इस तरफ का। बट गौड़ीय संप्रदाय में क्या है, कृष्ण ही सब कुछ है, ही इज द एवरीथिंग। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सारे अवतार हैं और सारे क्या बोलते हैं फॉर्म्स हैं वो भगवान से हैं, पार्शियल और कला भगवान का ही पार्ट्स हैं। सो इस तरह का श्रीमद् भागवतम बताया। और क्यों कृष्ण को ये मानना है, क्योंकि कृष्ण है वो ऐश्वर्य और माधुर्य है, वो कितना मात्रा में वो प्रकट करते हैं और अवतार्स नहीं प्रकट कर पाते। दैट्स वाई कृष्णा इज कॉल्ड एस, कृष्ण से ही क्या होता है, सब कुछ आता है। और ये भी है कि हमारा और विष्णु से कोई संबंध नहीं है। भाई सुन के जरा हैरान हो जाएंगे, जीव और विष्णु से कोई संबंध नहीं है। जैसे इस भौतिक जगह में तीन पुरुष, तीन रूप में आता है विष्णु। कौन सा रूप में आता है? कान दशा विष्णु, गर्भ दशा विष्णु और शीर दशा विष्णु। सो ये तीन परमात्मा का रूप में एक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना। सो जीव और परमात्मा में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तीनों मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। ये भौतिक जगह के लिए देखभाल करने के लिए तीन रूप आते हैं, और ये जीव भौतिक नहीं है, जीव स्पिरिचुअल है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट?
ये तीन विष्णु ये मटेरियल वर्ल्ड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये जीव हैं वो मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, ये जीव किसका है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। इसलिए ये जीव हैज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए ये परमात्मा में कोई इंटीमेट रिलेशन जीव नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए वो सिर्फ कृष्ण से कर सकते हैं क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल हैं। एंड देन कृष्णा इज ऑलवेज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड कृष्ण के रूप में ही आते हैं सारे विष्णु का मैनिफेस्टेशन, एंड देन डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। सो इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट गौड़िया वैष्णव में हम सुनने को मिलेगा, उसका नाम है योग माया। योग माया का वर्णन अब इधर ही सुनने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये योग माया क्या करते हैं, वो माधुर्य से ऐश्वर्य को ढक देते हैं। भगवान का ऐश्वर्य को माधुर्य क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। वो कौन ढकाता है, योग माया। योग माया को शंकराचार्य बोलते हैं कि योग माया है वो है तीन गुण एक जीव को ढक देता है। योग माया इज नथिंग बट इस तीन गुणा, थ्री गुणास दैट कवर्स जीवा। बट श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बट दैट इज नॉट योग माया, दैट इज महामाया। महामाया क्या करते हैं, तीन गुणों से जीव को क्या कर लेते हैं, भ्रमित कर लेते हैं। बट योग माया वो हैं, वो क्या करते हैं, भगवान का ही ढक देते हैं। किसको ढक देते हैं, भगवान का ऐश्वर्य को ढक देते हैं। भगवान ये भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, ये है योग माया। इसलिए योग माया इज ग्रेटर देन द लॉर्ड। योग माया भगवान से ही शक्तिशाली है। अब देखिए, भगवान का शक्ति भगवान से ही शक्तिशाली नहीं। ये थोड़ा सुनने में वो लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं? और योग माया क्यों इतना ग्रेट है, क्योंकि ये योग माया क्या करता है, आत्मा को कृष्ण के पास लेके आता है। दैट्स व्हाई द योग माया इज प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ। महामाया क्या करता है, एक जीव को कृष्ण से दूर लेके चला जाता है। बट योग माया क्या करता है, कृष्ण को जीव को कृष्ण के पास। एंड दिस इज इनकंसीवेबल। ये कैसे इनकंसीवेबल है, जीव है बहुत ही फाइनेस्ट है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही अणु है, 1/10,000 टिप ऑफ द एयर, ये है जीव का साइज। और भगवान विभु है, इन्फिनाइट है। कैसे एक इन्फिनाइट व्यक्ति को पास एक फाइनाइट व्यक्ति, मतलब एक इनसिग्निफिकेंट है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे एक इन्फिनाइट व्यक्ति के पास लेके जा सकता है, वो भी इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे बना सकता है। आप समझ रहे हो, योग माया का प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं, थोड़ा फिलॉसफी है, बट दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ गौड़ीय वैष्णव। ये एक जीव है, वो बहुत ही तुच्छ है। वो तुच्छ जीव कैसे ये विभु के साथ संग कर सकता है और इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। कि मेटल वर्ल्ड में मान लीजिए सबसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी है नहीं। अब नरेंद्र मोदी से हम जाके मिलने जाएंगे, एक तो मिलना ही मुश्किल है। हमारा तरफ लोग कैसे मिल सकते हैं, ये सच ए ग्रेट पर्सन, मिल ही नहीं सकते। मिलेंगे तभी कैसे होगा, इंटीमेट होगा। अब भक्त लोग इस्कॉन से है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और सब ठीक है। हमारे से क्या सेवा बताइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आप लोग। दैट्स ऑल फॉर्मल, एक फॉर्मल क्या हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, थोड़ी ना कोई इंटीमेट हो सकता है। इसलिए इट्स समथिंग विच इज इनकंसीवेबल है। कैसे एक इनसिग्निफिकेंट एक सोल एक अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है, वो विभु है, उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं। अभी तक क्लियर है, सब लोग समझ में आ रहा है। एंड देन हैप्पीनेस कम्स ओनली इन इंटीमेट रिलेशनशिप। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप थोड़ा विचार करो, इस भौतिक जगह में हर व्यक्ति के यार मैं इंटीमेटली से कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्यों, हैप्पीनेस उसी में ही है। बट इवन दो इट इज प्रिवेडेड, बट योग माया क्या करते हैं,
असली संबंध है एक जीव भगवान के साथ इंटीमेटली कनेक्ट होना। जब ये कनेक्ट हो जाए तो जीव क्या हो सकता है? सुखी हो सकता है। यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी। सो वो काम क्या करते हैं? योग माया करता है। समझ में आ रहा है ना? आप नरेंद्र मोदी को जाके आलिंगन नहीं कर सकते हो, कर सकते हो? आ जाते मिलते हैं, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, आपका वजह से आप सब आप आलिंगन करते हैं, क्या बोलेंगे उसको? सर्वेंट बोलेंगे बाहर फेंको इसको, पागल है ये, नहीं ऐसे बोलेंगे नहीं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेटनेस। कोई व्यक्ति महान है, वो इंटीमेटली वो तुच्छ लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं कर सकता। ये ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है कृष्ण के पास। उस ग्रेटर डिसएडवांटेज को दूर करते हैं, वो क्या है? भगवान। क्योंकि भगवान क्या है? कृष्ण रस से भरा हुआ है, उसको रस चाहिए। अनेक संबंध क्यों बनाते हैं कृष्ण? ही वांट टू एक्सपीरियंस द रसा। जब कोई व्यक्ति महान है तो वो रसा को कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? वो नहीं कर सकता, नहीं समझ में। सो दैट्स वाई ये फॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए और आनंद को लेके आने के लिए देन क्या करता है? योग माया क्या करता है? वो ऐश्वर्य को ढक देता है। इसके बोलते हैं द डेफिनेशन ऑफ कृष्णा, यानी इसलिए क्या चीज़ इम्पॉसिबल है उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, वो है कृष्ण का शक्ति। इवन दो इट इज इम्पॉसिबल, कृष्ण क्योंकि महान है, बट उसको पॉसिबल बनाते हैं क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। देन दैट इज कॉल्ड एज कृष्ण का शक्ति। उसको बोलते हैं अकथन कथन पति शक्ति। मतलब विच इज इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल बाय द एनर्जी ऑफ कृष्ण। सो इसका डेफिनेशन है, योग माया का डेफिनेशन ये है कि एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाना, इनसिग्निफिकेंट जीव को और अनलिमिटेड और इन्फिनाइट भगवान से इंटीमेट संबंध बनाता है में हेल्प करता है। वो कौन है? योग माया। आप लोग समझ में आ गए योग माया का डेफिनेशन? सो भगवान अपने ग्रेटनेस को भी लूज नहीं करता है, और सेम टाइम ही हैज इंटीमेट रिलेशनशिप विथ जीवा। सो बाय मर्सी ऑफ योग माया, नहीं। So this is one thing, this is the greatness of his energy. So because जब तक वो greatness को आप कवर नहीं करेंगे, then वो sweetness को महसूस नहीं कर पाएंगे। मतलब उसको लीला को, आनंद को नहीं तो कृष्ण ले पाएंगे। कृष्ण को याद है मैं भगवान हूँ, then यशोदा मैया के साथ, जैसे कार्तिक का महीना चाहिए, यशोदा मैया के साथ इस तरह का डीलिंग कैसे हो सकता है? रो रहे हैं, डर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, गुस्सा हो गया छोड़ दिया, इस तरह का एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं ऐश्वर्य को याद रहे तो। इसलिए योग माया क्या कर देते हैं? उस ऐश्वर्य को ढक देते हैं। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए ये ममत्व मतलब है ये मेरा है। अब मान लीजिए हम सब भगवान से प्रेम प्राप्त करने चाहते हैं, ये मूड है और ये कॉन्शियसनेस है। ममत्व मतलब ये मेरा है और मैं उसका हूं। इस कॉन्शियसनेस में आना बहुत जरूरी है। ही इज माइन एक्चुअली, ओनली देन यू कैन डेवलप लव। जब तक हम सोचेंगे ये भौतिक जगह में ये सब मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा मेरा, अरे उसमें भी ये भी मेरा होगी, ना मेरा यही मेरा है और इसको मैं ही हूं बस। इसको बोलते ममत्व, नहीं। देन प्रेम हो सकता है, नहीं तो प्रेम हो ही नहीं सकता। जब ये होगा ये मेरे को बिलोंग करता है और मैं उसको बिलोंग करता हूं, when that feeling of mindness is there, then there will be love. Otherwise there is no question of love. समझ में आ गया ना? सो ये चीज़ बहुत रेयर है, ममत्व नहीं, ये माइंडनेस है, ये किसी भी जगह में नहीं मिलता है। आपको गौड़िया वैष्णव में मिलेगा। दैट्स द ग्रेटनेस, नहीं। लॉर्ड बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू लॉर्ड। एंड ये चीज़ कौन करवा सकता है? कौन करवा सकता है? योग माया। आई बिलोंग टू लॉर्ड एंड लॉर्ड बिलोंग्स टू मी, ये चीज़ सिर्फ योग माया ही करवा सकता है।
एंड देन इसी मूड में ही हम एक प्रेम को, एक्सपीरियंस को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. अदरवाइज वी विल नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस. इसलिए योग माया का इन्फ्लुएंस हमारा ऊपर है, वो बहुत जरूरी है. सो अभी देन योग माया का इन्फ्लुएंस हमारा ऊपर कैसे लेके आ सकता है? बाई फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट सोल. जब महात्मा लोग हैं वो योग माया को अंडर में रहते हैं, उसको पदचिन्ह में हम चलने से हम क्या कर सकते हैं? हम योग माया का इन्फ्लुएंस को हमारे ऊपर भी लेके आ सकते हैं. सो कौन है ये सबसे श्रेष्ठ? कौन है योग माया का अंडर में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मतलब कौन पूरा रहता है योग माया का प्रभाव? कौन? हाँ, ब्रजवासीस. एंड प्रभुपाद ने बोलेंगे यू नो नीड टू सर्च ब्रजवासीस, आई एम ब्रजवासी. प्रभुपाद बोला मैं ही ब्रजवासी हूँ. सो यू फॉलो इन माई फुटस्टेप, यू विल गेट. सो इधर ब्रजवासीज हैं, वो योग माया का कंप्लीट कंट्रोल में रहता है. और कैसे स्टार्ट होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति, कोई साधक इस्कॉन में एंटर करता है ना, द डे वन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन. शुरुआत का पहले दिन से ही हमको ये इसी दृष्टि से हम भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, इसी दृष्टि से इधर जीना चाहिए, भक्ति को करना चाहिए. मैं कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरा, आप मेरा हो. दिस इज हाउ वी शुड लिव. जब कोई साधक इस भाव से चैंटिंग करता है ना, दैट इज चैंटिंग, दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग. जब इस भाव से कि मैं आपका हूं और आप मैं हूं, मैं ये नाम ले रहा हूं, ये मेरा है, मैं किसका नाम ले रहा हूं, ही इज माइन एक्चुअली. सो व्हेन दैट मूड इज देयर, देन देयर विल बी फीलिंग, अदरवाइज देयर विल नॉट बी फीलिंग. नहीं, जब हम चैंटिंग करते हैं, इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मी, ये कृष्ण है, मैं क्लोजली कनेक्टेड है, देन देयर विल बी ऑफेंसलेस चैंटिंग. अदरवाइज देयर विल नॉट बी इंटीमेट चैंटिंग. समझ में आ रहा है ना? सब इस तरह का करते हुए हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, देन ग्रेजुअली योग माया शेल्टर देना शुरू करता है. जब तक इस भाव में नहीं आएंगे, हम किसके अंडर में हैं? महामहिम. बट जब इस भाव से हर कार्य को भक्ति में करते हैं, देन योग माया स्टार्ट गिविंग शेल्टर. जेन्युइनली, इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट. ऐसे सोच कहाँ सोच के, ठीक है. सो देन द होल पाथ ऑफ गौड़ीय वैष्णव विल कम फ्रॉम, मतलब ये गौड़ीय वैष्णव का मेन क्या है? महामाया से कैसे उसको योग माया में लेके आए. महामाया क्या करते हैं? हमारे अंदर एक फीलिंग लेके आते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा जीवन है. पीपल से लाइक दैट ना, प्लीज डोंट इंटरफेयर, इट्स माई लाइफ, गेट अवे फ्रॉम माई लाइफ. बोलते ना, निकलो इधर से, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करिए. आपका कितना बढ़ रही है, मेरा ही खराब हो रही है ना जीवन, मेरा जीवन जीने दो ना. दिस इज महामाया. ये महामाया ये फीलिंग हमको प्रकट करवाती है कि क्या है, आप स्वतंत्र हो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. इस तरह का फीलिंग को देता है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, नॉट दैट सेपरेशन, फीलिंग ऑफ कैसे कृष्ण से दूर रहें, सो दैट हम कुछ भी कर सकते हैं. दैट महामाया गिव्स. सो बट हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? महामाया से प्रभाव से योग माया में कैसे आए. जब योग माया हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, जब हम स्ट्रांगली इन्फ्यूज हो जाता है अपने मन में, वी हैव दिस, ये चीज़ है, पूरी कन्विंस्ड है, मैं आई हैव नथिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड. मेरी इस भौतिक जगह में कुछ मतलब मेरे को इस भौतिक जगह में कुछ नहीं करना, बिकॉज आई एम बिलोंग टू हिम, आई एम मेड टू सर्व हिम. मैं तो इसलिए बनाया गया हूँ इसको सेवा करने के लिए. जब हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट, हाँ नहीं यार भौतिक जगह में है, देखो हमारा में कुछ लैंड भी है, इसको देखभाल करना है, अभी ये भी कुछ है, कुछ कार्य बचा हुआ है, ये भी ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करना है, अभी बहुत ड्यूटीज़ है हमारा. ओके, देन यू विल बी अंडर द
इन्फ्लुएंस ऑफ महामाया। जब कोई व्यक्ति पूरा कन्विंस्ड है मेरे से कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगह में, फ्रॉम दैट पॉइंट द योग माया एक्ट होती है, नहीं? सो बट इफ यू थिंक दैट नहीं मेरा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ है, यू विल नेवर, आपका अभी तक चैंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ। द चैंटिंग विल स्टार्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई बिलोंग टू हिम एंड ही बिलोंग टू मी। उस समय से वास्तव में हरिनाम स्टार्ट होती है। हमारा फिलॉसफी ब्लैक एंड व्हाइट है, देयर इज नो इन बिटवीन, नहीं, 0 और 1 बाइनरी सिस्टम, देयर इज नो मिक्स्ड। समझ में आ रहा है? सो इफ एट ऑल आपका योग माया का प्रभाव में आना चाहते हैं, देन ये भाव आना है, आई बिलोंग टू हिम एंड ही बिलोंग टू मी। ओनली इस भावना से ही हम क्या कर सकते हैं, हम हरि नाम ले सकते हैं। सो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक फ्यू मोर मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स। 10th कैंटो में चैप्टर 26 श्लोका नंबर 1। सो चैप्टर 26 है, उसका चैप्टर का नाम है वंडरफुल कृष्ण। सो उसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये 7 दिन का लीला हुआ, गोवर्धन लीला। अभी तक देखो कुछ भी थोड़ा लीला होता है ना, मतलब थोड़ा टाइम के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए। किसी को असुर को मारा, कुछ ही मोमेंट में लीला खत्म हो गया। सो वो रैशनली देखते थे। कब तक? 7 साल तक। 7 साल में गोवर्धन लीला हुआ। 7 साल तक ये लोग यही सोचते थे कि देखो कृष्णा का क्यों ऐसे ऐसे हो रहे, 3 कारण के वजह से। एक है नंद महाराज बहुत पुण्य आत्मा है। देखिए सारे ब्रजवासी पुण्य लोग हैं, पुण्य आत्मा लोग हैं, बट उससे भी श्रेष्ठ नंद महाराज हैं, इसलिए वो बहुत पुण्य आत्मा है, इसलिए उसको बेटे को स्वयं नारायण सुरक्षा दे रहे हैं। ये पहला कारण था क्यों कृष्ण के साथ इस तरह का अद्भुत कार्य होते हैं। मतलब 6 दिन हुआ, पूतना को मार दिया। बच्चे आंख भी नहीं खुल पाते हैं 6 दिन में, उसमें इतना बड़ा असुर को कैसे मार दिया। सो वो लोग का इसलिए मार दिया क्योंकि नंद महाराज क्या है, बहुत पुण्य आत्मा है। ये पहले है। और दूसरा है देखो ये कृष्ण है ना, बहुत लकी है। क्यों? बिकॉज ही इज वेरी वेरी पायस। ये बता रहे हैं कि दे आर वेरी वेरी पायस हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छा कर्म है, इसने अच्छा कर्म किया, इसलिए उसके साथ क्या नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट उसके वजह से हम भी बच जाते हैं। ये सेकंड कारण दिया। थर्ड कारण है, देखो हमारा ब्रजवासी लोग ब्राह्मण है ना, बहुत शक्तिशाली है। ये लोग बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत चीज कृष्ण के साथ नहीं होता। हमारा ब्राह्मण लोग मानना पड़ेगा, दे आर रियली वेरी पावरफुल। सो वो हमेशा ये 3 कारण देते थे कि इसलिए ये क्या है, कृष्ण के साथ कुछ होता नहीं है। बट अभी ये ब्रजवासी के ऊपर डाउट हो गया यार, 7 दिन वो भी एक उंगली में इतनी बड़ी पर्वत को उठा के रखे। उसको देखे हैरान हो गया। एक दिन नहीं, थोड़ा टाइम के लिए नहीं, 7 दिन तक। और गोवर्धन है, सारे पर्वत में राजा है। गोवर्धन का हाइट था उस समय का 8 किलोमीटर थे, और छोटा पर्वत भी नहीं है। पर्वत में राजा को वो भी हल्का, जैसे एक बड़ा हाथी एक कमल को उठाते हैं वैसे उठा दिया। ये कैसे हो सकता है यार? एंड देन इसके ऊपर क्या है, ये तो ऐश्वर्य है, ऊपर क्या हुआ, 7 दिन तक ब्रजवासी कोई खाया नहीं पिया नहीं। आपने पूरा गोवर्धन लीला में देखेंगे, ऐसे नहीं है कोई बर्तन वाला ले रहे हैं, धो रहे हैं और सब्जी काट रहे हैं कुछ लोग। मतलब 7 दिन का यात्रा चल रही है, थोड़ा कुकिंग करके बीच बीच में खिलाई भी जा रही है। कभी गोपियाँ उसको खिला रहे हैं, कभी गोपो उसको खिला, ऐसे कुछ लीला नहीं, ऐसे कुछ वर्णन नहीं है। कृष्ण का इतनी सुंदर थे, इतनी सुंदर था वो
रूप इतना इंटॉक्सिकेशन था, इतने हेवी ड्रग्स थी, वो नशा में इतना हो गया उसको पता भी नहीं चला। जैसे बोलते सबसे पावरफुल ड्रग, हमारा भौतिक जगत में पावरफुल ड्रग होता है, बट ये ऐसे ड्रग थे उसका नशा उतरे नहीं। जब कृष्ण चला गया है इसके बाद 3 दिन के बाद इस तरह का विचार आया, 3 तक नशा चढ़ा हुआ जाने के बाद भी इसका सुंदरता इतनी पावर थे। लोग चाइना में एक इंसिडेंट था कि एक व्यक्ति कंप्यूटर में इतनी एडिक्टेड था, खाना भूल गया और मर गया। और इधर काहे नहीं, पूरा नंद महाराज को बताया क्या, बेली इतना बड़े बड़े बेली है, काहे नहीं, बट फिर भी क्या है, अट्टे कट्टे रहता है। कैसे कैसे हो सकता है, 7 दिन तो सूख जाते होंगे, नहीं हर बाद में यार फीस्ट होगा 7 दिन फास्टिंग किया, नहीं सब कुछ थे, अट्टे गट्टे थे, क्यों, दे वर ड्रिंकिंग द ब्यूटी ऑफ कृष्ण, भगवान का सुंदरता को क्या कर रहे थे, चख रहे थे। सो इस लीला का पहले तो वो रैशनलाइज कर रहे थे कि ये 3 कारण की वजह से क्या है, कृष्ण इस तरह का चमत्कार कर रहे हैं। बट अभी ये लोगों का एक विचार आ गया, यार ये कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जोक नहीं है, एक इतनी बड़ी पर्वत को कैसे कर सकते हैं, अब समझ रहे हैं ना। सो ये वाला ग्रेटनेस है, ये बोल रहे हैं कि यार ये बोल रहे हैं कि ये कैसे है। The coward men were astonished when they saw Krishna's activities as lifting over the Nile. Unable to understand his transcendental potency, they approached Nanda Maharaj and spoke as follows. And then इस तात्पर्य में इतनी सुंदर बताएं, बोले कि गोवर्धन जब लीला हो रहे थे, वो लोग सिर्फ भगवान का आनंद, भगवान का सुंदरता को आनंद ले रहे थे, उसके कार्य को देख के बहुत अद्भुत हो गए। जब वो लोग घर वापस आए हैं, उसके अंदर में परप्लेक्सिटी अरोज विद इन देयर हार्ट, और अभी सोचें कि ये छोटा बच्चा कैसे गोवर्धन को उठा सकता। एंड देन वो लोग रिमेंबर करना शुरू किए। क्या रिमेंबर करना शुरू किए, सारी लीला को रिमेंबर करना शुरू किए। क्योंकि पहले कितनी भी लीला हुआ थी, वो सब योग माया ने क्या कर दिया, उसको वो लोगों को भी ढक दिए। एक तो कृष्ण का ऐश्वर्य का ढक दिए, और दूसरा जैसे ये लोगों को विचार भी आता है ना ये भगवान है, उसको भी ढक देते हैं। आप समझ रहे हैं ना। योग माया जब ब्रजवासी को भी बुद्धि को नहीं ढके तो देन वो लोग भी कैसे देखेंगे, भगवान के रूप में देखेंगे ना, उसको भी ढकते हैं, जो योग माया ढक देते हैं। देन बोलते हैं ब्रजवासी बोलते हैं कि जब कृष्ण से मिलने का मतलब क्या है, योग माया किस तरह का फीलिंग देते हैं। योग जब कृष्ण को जब मिलते हैं ऐसे लगते हैं कि एक चंद्रमा का प्रकाश है। चंद्रमा का प्रकाश है, बहुत स्मूथिंग होता है, और कितना लाइट चाहिए उतना दिखता है। समझ में आ रहा है पॉइंट। एंड देन पूरी भौतिक जगह को ढक देते हैं, पूरी भौतिक जगह का डिटेल्स नहीं दिखते हैं, यू कैन नॉट सी द मटेरियल वर्ल्ड। सेम टाइम आप बहुत स्मूथिंग भी रहता है। नहीं समझ में आ रहे हैं पॉइंट। ब्रजवासी का कृष्ण को देखना मतलब क्या है, कैसे चंद्रमा का शीतलता है। चंद्रमा लाइट भी देते हैं, उतना लाइट देते हैं और कितना जरूरत हो। सो इसमें बोल रहे हैं कि वो और अंधकार को दूर करता है। अंधकार का दूर करने का मतलब है वो मेटल वर्ल्ड को डिटेल्स को नहीं देख पाएगा, रात में देख पाता है मेटल वर्ल्ड को। सो ये सेइंग कि उतना लाइट देते हैं वो, उससे आप क्लियरली देख पाते हैं, उतना मून लाइट देता है। सो इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्ण चंद्र बोलते हैं। बट सूर्य के प्रकाश होती है, बहुत पेनिट्रेटिंग होता है। अभी देखो कुछ समय के बाद निकालना होगा, एक एक चीज दिखती है नहीं। सो दे कंपेयर भगवान का प्रेम को और भगवान का सुंदरता को चंद्रमा के रूप में देखते हैं। सो इसलिए उस शीतलता का सब कुछ भूल गए थे। जैसे वो दूर हो गया है, ये टॉपिक इसलिए हो रही है क्योंकि उधर कृष्ण नहीं थे। जैसे कृष्ण होता है ना, वो लोग भूल जाते हैं क्या सोच के आए थे। अरे यार ये कितना सुंदर है, लल्ला लल्ला, आज लेके वो चकना किस करना, उसी के ही पीछे पीछे भाग जाते हैं। किस लिए आए हैं भूल जाते हैं। बट अभी कृष्ण नहीं है,
इसीलिए पूछ रहे नहीं यार, ये भगवान हो सकता है, 7 दिन तक कोई ऐसे उठा के रख सकते हैं, ये तो भगवान ही होगा। और इतना सुंदर है कोई व्यक्ति, चंद्रमा के तरफ वो लग रहे हैं, ये कृष्ण चंद्र है, ये इतना सुंदर कौन हो सकता है? देखिए सबसे ज्यादा व्यक्ति का प्रेम अपने शरीर से प्रेम करता, क्योंकि आत्मा है। पहले तो अपने बेटे को, अपने परिवार को प्रेम करता, उससे भी ज्यादा प्रेम अपने शरीर को प्रेम करता, क्योंकि आत्मा है। अब देखो इससे पता चल रहा है ब्रजवासी को कितनी ज्ञान थे, और उससे भी ज्यादा प्रेम परमात्मा को करते हैं। समझ में आ रहा है? पहले हमारे परिवार को प्रेम करते हैं, और उससे भी ज्यादा प्रेम अपने को, और अपने से ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? परमात्मा को। और हम सब हैं, अपने बच्चे को हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसको प्रेम कर रहे हैं, इसके देख पागल हो रहे हैं हम। इसका मतलब है ये जरूर भगवान ही होंगे। इस तरह का कंक्लूजन में आ रहे हैं ब्रजवासी। देन बोले देखो पूतना को मारे तो वो डिटेल बता रहे हैं। सी इफ यू वांट टू मेडिटेट ऑन कृष्णा यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द लीलास। लीला का डिटेल से पता होगा देन आप उसको मेडिटेट कर सकते। इसलिए आप देखेंगे एक एक आचार्य है, एक एक लीला को बहुत डिटेलली बताता है, इतना डिटेल है। सब डिटेल हुआ तो देन मेडिटेशन इजी होता है, एंड दे विल एबल टू रिमेंबर कृष्ण। दैट्स व्हाई हम कभी हैं हर लीला में डिटेल्स में जाना चाहिए। सो अभी ब्रजवासी डिटेल में बताते देखो 6 दिन का था, 6 दिन तो बच्चा सोते रहता, इवन जग भी जाता है बच्चा, वो आंख नहीं खुलती है, वो जगह रहता बट आंख नहीं खुलते। आपने देखा कभी 6 दिन का? ये भी प्रॉब्लम है, आपने देखे भी नहीं होंगे। 6 महीने के बच्चे को देखे हैं? नहीं, ये तो गाँव से आना चाहिए, गाँव से दिस एक्सपीरियंस इज देयर ना। नहीं, सो हमने देखे हैं हमेशा आंख बंद रहते, चिल्लाते हुए आंख बंद करके चलाते। आपको ये नहीं दिखेगा आप बच्चे आंख खुलते हुए 6 दिन का है, आंख खुल भी नहीं सकते हैं। कैसे यार ये पूतना को मार दा। अरे इतना भी जोड़ो, 1 महीने के थे वो सट्टासुर, पता है वो 6 बड़े बड़े हेल्दी बुल होता है ना, मतलब वो उतना हेवी है, उसको खींचने के लिए 6 बुल चाहिए, उतना हेवी है। और उसके ऊपर सारे घी सब कुछ बना के रखे, मतलब बहुत लोड डाल के रखे हुए थे, क्योंकि भगवान टर्न हो गए हैं, इसके लिए उत्सव है। बिना हेल्प का कृष्ण क्या बोलते हैं उसको, करवट बोलते हैं ना, करवट बदल दिया है इसके वजह से फेस्टिवल। और उस समय करवट बदलते हुए थोड़ा सा हल्का सा पैर टच हो गया, वो टूट गया। मतलब 6 बुल, मतलब 6 क्या बोलते बुल को, बैल खींचने वाला इतनी हेवी, इसके ऊपर इतना सामान भरा हुआ है, और इतना 1 महीने का बालक का हल्का सा टच हो गया, टूट गया। नाउ दे आर सीइंग फ्रॉम दिस, ये भगवान है, इस तत्व से देख रहे हैं। देखो श्रीमद् भागवतम को समझना तो ब्रजवासी का मूड से समझना होगा। जब प्रहलाद महाराज की कथा भी सुन रहे हैं, ब्रजवासी प्रहलाद महाराज को क्या कैसे कथा सुनता हूं, उसी के मूड से सुनना होगा। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज श्रीमद् भागवतम, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। नहीं, सो बोल रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है ये। देन सारे लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देन ये सेकंड श्लोक में बता रहे हैं, आके आप लोग को टाइम नहीं है, टाइम है तो ये परपोट पढ़ना, बहुत सुंदर परपोट है। ये सब बोलने के बाद 7 साल व्यक्ति कैसे इतना उठा सकता, हाँ, बट देन नंद महाराज बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। देन देखो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, आत्म जुगुप्सितम, बोलता है कि ये बर्थ फॉर हिम कुड सीम कंपेटेबल। देखिए, since this boy performed such extraordinary activities, how could he warrant a birth among the worldly men like us? देखिए यार इतना महान कार्य कर रहा है ये, और हम तो इतना तुच्छ हैं। देखो भगवान का प्रेम करने का ब्रजवासी सिखा रहा है, कैसे प्रेम करना। पहले है ब्रजवासी बोल रहा है हम तो बहुत नीचे हैं, ये तो महान है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑन इज रिक्वायर्ड।
इन ऑर्डर टू अप्रोच लॉर्ड, कि हम कितनी लो हों और कृष्ण कितना महान है। देन क्या बोल रहे हैं, ये बर्थ दैट फॉर हिम कुड सीम्स कंटेम्पेटेबल, मतलब ये कैसे हमारा तरफ लोगों के साथ कैसे जन्म लिया। इधर एक है विनम्रता प्रकट कर रहा है। सो भगवान का स्वीटनेस को समझने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। गर्वित नहीं, ये बोल रहे हैं हम लोग बहुत नीचे हैं, लो हैं, और ये कार्य से पता चल रहा है ये बहुत महान है, और ये व्यक्ति को कैसे हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमारे साथ क्या हो सकता है। सो ये तो भगवान ही होंगे। देन बोलें कि देन नंद महाराज बोले नहीं 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 नहीं, अरे यार आप लोग है ना, ये कहावत है, ये देखो ये गोप लोग हैं कितनी सरल है। बोला जाता है ये गोप लोग होता है 80 साल में अडल्ट होते हैं। क्या बोलते हैं, एट द एज ऑफ 80 दे बिकम अडल्ट। 80 साल तक बच्चे ही बन के रहते हैं, इतनी सरल है ये लोग। नहीं नंद महाराज वाले देखो, किसी के साथ संग करता ना वैसे बन जाता। आप लोग गाय के साथ संग करते हैं, सर गाय के साथ संग करते के बुद्धि में गोबर ही भरा हुआ आप लोग के पास। अरे थोड़ा सोचो, ठीक है आप लोग बड़े ये है, जब भूख लगे तो क्या करता वो, क्या करता भूख लगे तो चोरी करता। अरे अपने घर में क्या करता है, मक्खन चोरी करते हैं, दूसरा का घर में जाके चोरी करते हैं। अरे एक योगी भी है, योगी भी क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तप करते हैं। ये योगी तक भी नहीं है, थोड़ा इमीडिएट हल्ला गुल्ला कर लेता है, ये थोड़ा भूख लगे पूरा हल्ला गुल्ला करता है। ये कैसे भगवान होंगे। अरे यार मजा, इतने गोबर है यार आप लोग के अंदर, गोबर भरा हुआ है, बुद्धि नहीं है। ऐसे बोल के नंद महाराज क्या कर देते हैं, काट देते। सो दिस इज समथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि क्या बोलते हैं, ये ऐश्वर्य है। योग माया क्या करता है, ऐश्वर्य को, भगवान का ऐश्वर्य क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस दिस स्वीटनेस। सो मैं इधर एंड करूँगा कि 10.8 में लास्ट वर्स में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यूनिवर्सल फॉर्म उसमें प्रकट करने के बाद वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ रियलाइजेशन और डिफरेंट लेवल ऑफ भगवान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, जैसे आज श्लोक पढ़ रहे थे, इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं। इम्पर्सनलिस्ट लोग क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उसको वो लेवल है। और सेकंड लेवल ऑफ रियलाइजिंग द लॉर्ड इज सांख्य। सांख्य फिल, जैसे सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं भगवद गीता में, नहीं सिद्धप्रज्ञ मुनि के बारे में, और कपिल मुनि थर्ड कैंटो में कपिल देव का शिक्षा पढ़ते हैं। सांख्य फिलॉसफी में से ये समझ में आता है कि इस सृष्टि का, इस सब का पीछे कोई है, एक व्यक्ति है, देयर इज सम पर्सन बिहाइंड, इस परमात्मा, ये रियलाइजेशन होता है। एंड तीसरा लेवल है वो है योगी लोग हैं। योगी लोग परमात्मा को ध्यान करते हैं और ध्यान करके ये प्रयास करते हैं कैसे मैं इस परमात्मा से क्या करूं, कनेक्ट करूं। और देन फोर्थ लेवल है वो है पंचरात्रि। पंचरात्रि विधि से भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को एक विग्रह के रूप में पूजा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं। ये है फोर्थ लेवल। और फिफ्थ लेवल है वो है यशोदा मैया, ये मेरा बेटा है, ही इज माई सन, ही इज माई लवर, he is my friend, he is my master. So ये टॉप मोस्ट है एंड हमको इस लेवल में आना है। We have to reach to this point. So टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है वो क्या है, हरे कृष्णा। टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है वो है कृष्ण मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है और मेरा प्रेमी है और मेरा स्वामी है। That's what the Gaudiya Vaishnavism is teaching us. इसलिए सबसे टॉप मोस्ट बोला जाता है। It will take you to the highest realization कि कृष्णा मेरा है। समझ आ रहा ना? So we have to reach that point. समझ आ रहा? So और उस समय में ऐश्वर्य को योग माया ढक देता है, पता नहीं रहता है कि ये भगवान था।
he is my son, they treat us the son. So हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में इस लेवल में आना चाहिए, दैट्स द पॉइंट. ठीक है, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी. मैं कंक्लूजन में आने के लिए मैं सुन रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो. ठीक है, थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की